लास्ट टाइम या लास्ट टू लास्ट टाइम शी आज समथिंग एक क्वेश्चन पुट अप किया था मेरे ख्याल से तब तक ये लीव कर गए थे एंड आई रियली फॉरगॉट द क्वेश्चन आई डोंट नो वेदर शी गॉट द आंसर और नॉट. या आई स्टिल रिमेम्बर द क्वेश्चन। और हाँ. मैंने उसके कॉन्टेक्स्ट में नलिनी जी, आर यू अ पार्ट ऑफ इनसिंक ग्रुप? शायद आपकी ना वॉइस बीच बीच में लैग कर रही है. नलिनी जी, एम आई ऑडिबल, सुनैना नाउ? या इट्स बेटर बट कट रही है बीच में. इज इट? नलिनी जी, एम आई ऑडिबल? यू ऑडिबल. ओके। Yes, yes, हाँ, yes, you're audible. नलिनी जी, आर यू पार्ट ऑफ इनसिंक ग्रुप? हाँ, yes. मैंने इन आपकी एक दो मीटिंग्स ही अटेंड की हैं, मैं थोड़ा सा बिजी थी पीछे. आपने क्वेश्चन पुटअप किया था ना, तो उसके कॉन्टेक्स्ट आप लीव कर गए थे कॉल, लेकिन उसके उस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हमने ग्रुप में आंसर्स दिए थे, शेयरिंग्स दी थी, बट आई कुड नॉट लोकेट यू इन माय ग्रुप। अच्छा. हेलो, गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग दीपिका जी। तुषार जी, आप तो दो दो रूप में दिखते हैं, लैपटॉप में और उसमें खोले रहते हो ना। जी। इनका तुषार जी का जलवा ही जलवा है। नहीं भूमिका जी, ऐसा नहीं है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से दो दो जगह से लॉग इन करना पड़ता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मजा है, हंसना भी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आज ये तो बहुत दिन बाद आई हैं। यस, गुड इवनिंग डॉक्टर बैथ, वेलकम बैक। स्टिल जॉइनिंग। हाय, गुड इवनिंग डॉक्टर बैथ। He hasn't joined yet, Tushar. यस। She has. Okay. Okay, yeah, she's here. हेलो अलका जी। हेलो तुषार. नलिनी जी, आई वाज जस्ट आस्किंग, शी इज देयर, शी इज लेफ्ट नाउ। मुझे क्वेश्चन याद है सुनैना उनका, तो हम अभी टेकअप भी कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर उन्होंने वो कॉन्वर्सेशन नहीं पढ़ी है, राइट? हाय, गुड इवनिंग डॉक्टर बैथ, वेलकम बैक। We were missing her badly. Dr. Bath, good evening. Nice to see you all. Same here. सेम हमारी तरफ से हियर। भी गुड इवनिंग। अब हम फॉरेन कंट्री का भी एक हाउस हो गया हमारा। Dr. राइट। Beth, do you know that what she's talking about? She's saying like we have another home wherever you stay. You stay in Canada, I believe. गुड इवनिंग मैंने कहा डॉक्टर। सुनैना जी, ये जतिंदर आपके घर में किसका नाम है? इसीलिए हम कंफ्यूज हुए थे। सुनैना जी नाम ही दूसरा रखती हैं, जतिंदर। आपकी आवाज कट रही है भूमिका जी. अच्छा। इनके हस्बैंड का. हाँ, वही मैंने कहा। भूमिका जी ने सबसे पहचान बना लेनी है, सुनैना जी। एंड शील ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया घुमाएंगे ये। जूम ने तो घुमा ही दिया। या, हेलो दिव्या, हेलो मंजिल। हेलो, गुड इवनिंग। हम्म। डॉक्टर Beth, we have been missing your words of wisdom in person. You are on mute. Please unmute. Yes. Thank you. I've been missing you all too. I've enjoyed our meetings. Thank you. Thank you. Lovely. Lovely to have you here again. Yeah. So hopefully I will have better connection. I have a new little thing that's supposed to Hopefully. by the This is internet. hope. Let us And hope. how is your this course going on? You have started with some uh, course in Canada. Yeah, I'm still in Thailand right now. So Okay. um, Are you pursuing it online, or will you do it once you go back to Canada?
Yes, I'm imagining if I can come to India, and if I do, I will definitely let you know. I'd love to see you. Oh, So lovely, lovely. I was just asking about, are you doing the course online or you will go back to Canada and then start it? yeah, I'm actually going to Japan in March. I'm presenting at a conference, then Okay, back to Thailand, and then back to Canada. But I'll be all in right. until then, unless something else So happens. you have a busy schedule till April. Yeah. But it's good. It's all It's good. good. Busy and productive. Yeah. Thank Good, you. good, lovely. Okay, Sheetal. Hi, Sheetal. What chapter are we on, by the way? I want to make sure I've been reading along, but I want to make sure I'm caught up with you all. Yeah, this is chapter 10. Sunaina, can you please check? Acha, Monica ji is here. Hello, Monica ji. Yeah, Dr. Beth, I'll just convey the chapter on the page number as well. Good evening, all. Welcome back, Dr. Beth. Good Nice evening, to good see evening. you. Okay. So this is page number 137. I'll just share it. Is my screen visible? Yes. Okay, lovely. सर 2 मिनट आई थिंक वेट करें. Ji, ji. हाँ. This is chapter 10. Dr. Beth, chapter 10, page number 137. And the paragraph starts with shame spread within me like a suffocation. You move, I think, 5 pages forward once chapter 10 starts. Flip 5 pages and then you will reach to the paragraph that we are reading. Okay. Monica ji, should we wait for some more time? जी तुषार, Okay. हिंदी कोई पढ़ देगा ना? तुषार, जी. Yeah, हिंदी में हाँ, हिंदी हिंदी में. में कोई रीड कर देगा ना? Yes, Sunaina, will you? yeah, I'll be able to read. आपको मेरी Okay. आवाज आ रही है clearly? जी, it's audible. Okay, right. Hello, Vandana जी. हम शुरू कर सकते हैं ना अभी? Shall we? Monica ji, are we waiting for some other person or shall we start? नहीं नहीं, आप शुरू कीजिए तुषार प्लीज. Perfect, perfect. Yeah. So let's resume from page number 137 and first paragraph. Shame spread within me like a suffocation, but the past day of my torture was not easily forgotten. I ventured a further remark. Swamiji, I'm puzzled about. One second. I'm puzzled about following your instruction. Suppose I never ask for food and nobody gives me any. I should starve to death. Die then. This alarming counsel split the air. Die if you must, Mukund. Never believe that you live by the power of food and not by the power of God. He who has created every form of nourishment, he who has bestowed appetite, will inevitably see that his devotee is maintained. Do not imagine that rice sustains you, nor that money or men support you. Could they aid if the Lord withdraws your life breath? They are his instruments merely. Is it by any skill of yours that food digests in your stomach? Use the sword of your discrimination, Mukund. Cut through the chains of agency and perceive the single cause. I found his incisive words entering some deep marrow. Gone was an age old delusion by which bodily imperatives outwit the soul.
Then and there I tasted the Spirit's all sufficiency. In how many strange cities in my later life of ceaseless travel did occasion arise to prove the serviceability of this lesson in a Banaras hermitage? Over to you, Sunana, and I will just share the Hindi screen. Yeah, sure. Okay. So do you see that? I can see that. It starts with Uh, लज्जा के मारे. आपको मेरी आवाज आ रही है ना? मेरे को लग रहा है कि मेरी आपकी शायद ना इको इको कर कर रहा है. हाँ, ये मैं ना पता है मेरे ना उसके डेस्कटॉप पे ना प्रॉपर्ली नहीं आ रही. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी सी. We have to read from here. लज्जा के मारे. Yes. अच्छा. लज्जा के मारे मेरा दम घुटने लगा, परंतु कल की यंत्रणा को आसानी से भुला भी तो नहीं दिया जा सकता था. मैंने और एक बात कहने का साहस किया. स्वामी जी, आपके आदेश से मैं उलझन में पड़ गया हूँ. कल्पना कीजिए कि मैं कभी खाना न मांगूं और कोई अपने आप मुझे खाना न दे. तब तो मैं भूख से मर ही जाऊंगा. तब मरो. इस भयंकर उपदेश से जैसे वातावरण में विस्फोट कर दिया. जी यदि सुनिए ना मैम, यहीं तक लेते हैं पहले. हम्म. हाँ. अ, जी. लज्जा के मारे उनका दम घुटने लगा. उनको जो स्वामी जी ने कहा था ना, उन्होंने 4 दिन से भोजन नहीं किया और यात्रियों के साथ वो डिफरेंट वाइब्रेशंस में कुछ खाना नहीं चाहते थे. और ऐसे ही वो आए और रात को तो उनको भोजन पर टूट पड़ना चाहिए था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. वो भोजन पर बिल्कुल भी टूट कर नहीं पड़े और उन्होंने बहुत सामान्य से थोड़ा सा भोजन किया और अपने कमरे में चले गए. ये हमने पिछले क्लास में किया था. और वापसी में मुकुंद उनके साथ साथ चल रहे थे, तो मुकुंद ने जब उनसे सवाल किया कि आपने भोजन ठीक से नहीं किया, तो उन्होंने ये जवाब दिया, ये जो अभी हमने डिस्कस किया. तो ये बहुत ही चौंकाने वाला था. एक व्यक्ति जो 4 दिन से जिसने ढंग से खाना नहीं खाया है, वो इतना शांत और इतना सरल कैसे हो सकता है. और आने के बाद भी उन्होंने नहीं खाया, ये और अचंभित करने वाली चीज थी. तो ये कहीं ना कहीं उनको अपने पे लज्जा आ रही थी कि मैं जो इतना भूख से मरा जा रहा था, मैं जो इतना कनेक्टेड फील कर रहा था, और मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं भोजन नहीं मिला या मैंने सुबह से नहीं खाया तो क्या ही होने वाला है. बिकॉज ही ऑल्सो पास्ड अवे फ्रॉम दैट इंसिडेंट, कि मैं कहीं गलत गलत हूँ, या मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, या मैं मतलब मेरे को इतनी भूख लगी हुई थी. तो उनके माइंड में प्रश्न उठने लगे इस चीज को लेकर, और वो बहुत डिस्टर्ब हो गए. और पर I think उससे एक Monica, दिन पहले उनका व्रत था. voice, अगले करते करते पता चला. जी, your voice ब्रेक पर ही है. breaks मैं down वीडियो in between, Monica ji. मैं हाँ. वीडियो ऑफ कर. जी, अब right. ठीक है. या Yes. हाँ. तो अब उनको ये लगा कि फिर दोपहर को पता चलता कि वो शाम को आ रहे हैं. चलो शाम तक वेट किया, फिर पता चलता है कि वो पहले साधना करेंगे, फिर स्नान करेंगे, फिर भोजन के लिए आएंगे. तो ये तो मरण सन जैसा हो गया था उनके लिए. तो ये सारी यंत्रणा भी उनके दिमाग में थी, लज्जा भी उनके दिमाग में थी. तो इन सबको समेट कर उन्होंने एक बात कहने का साहस किया कि मैं बात करता हूँ. बिकॉज कम्युनिकेशन ऑलवेज गिव रिजल्ट्स. हम बात नहीं करते, मुंह फुला के बैठ जाते हैं, घुन्ने बन जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं, नम हो जाते हैं, गरीब सा महसूस करने लगते हैं, पर बात नहीं करते. अकड़ हम में इतनी होती है, ईगो इतनी होती है, सब कर लेंगे. मतलब एक व्यक्ति बीमारियों को निमंत्रण आमंत्रण दे देता है, पर बात नहीं करता कि मैं क्यों पहले बात करूं. ईगो के चलते वो ऐसा करता है. तो बट इन्होंने कहा बात करनी चाहिए, और उन्होंने बात करने का फैसला किया. उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आपके आदेश से तो मैं उलझन में पड़ गया हूँ. आप कल्पना कीजिए कि अगर मैं कभी खाना मांगू ही नहीं और मेरे को कोई खाना दे भी नहीं,
मतलब मैं मांग भी नहीं रहा हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा भाई मुझे भूख लग रही है भोजन दे दो, और कोई मुझे भोजन दे भी नहीं रहा है। एक ऐसी परिस्थिति भी आती है कि चलो हम नहीं मांग रहे, तो हमारे कोई केयर टेकर है, वो बोलते हैं भाई तुमने खाना खाया, हम बोलते हैं कि नहीं खाया, तो रुको ना मैं तुम्हें देता हूँ, या माँ देती है या बीवी देती है, बच्चे देते हैं। वो बोले मैं मांगू भी नहीं और कोई मुझे दे भी नहीं, तो वो भूख से मर ही जाएंगे। अभी इन्होंने यहाँ पे अपने बनाने की वो नहीं करी है कि मैं कुक अपने लिए खुद ही कर लूं, ये तीसरी ऑप्शन उन्होंने केबीसी की तरह नहीं दी है। दो ही ऑप्शन रखी है। जी मैम, आपने अगला भी पढ़ लिया ना? हाँ, अगली एक लाइन पढ़ी है। तो तो अचानक स्वामी जी के मुंह से निकला, तब मरो, मर जाना चाहिए तुम्हें ऐसी परिस्थिति। इस भयंकर उपदेश ने जैसे वातावरण में विस्फोट कर दिया। मतलब उन्हें इस शब्द की उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि तो मरो। तो ये काफी विस्फोटक था उनके लिए। अब आगे क्या प्रक्रिया होती है देखते हैं। जी मैम। यदि मरना ही पड़ा तो मर जाओ मुकुंद। कभी भी यह मत मानो कि तुम भगवान की शक्ति से नहीं, अन्न की शक्ति से सृजन किया है। जिसने भूख दी है वह थोड़ा सा ऊपर करें तुषार। जिसने भूख दी है हम्म, वह भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण भी अवश्य करेगा। कभी यह कल्पना भी मत जी करना कि तुम यही चावल से जीवित हो, या रुपया पैसा या लोग तुम्हारा पालन जी पोषण करते हैं। यदि प्रभु जी, तुम्हारी तुषार प्राण थोड़ा सा शक्ति को नीचे करेंगे वापस ले प्लीज। ले तो क्या इनमें से कोई तुम्हारी सहायता कर सकेगा? ये सब I तो उस think भगवान के ही साधन बस मात्र हैं। बस यही I क्या think Monica यही इसमें ji तक wants तुम्हारा बस, to है ना? Monica ji wants to explain यहाँ तक. हम्म, Is it Monica ji? यहाँ तक पहले थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जी जी, बिल्कुल, थैंक यू। तो जाकर मरो। अब इसमें भी बहुत बड़ा मैसेज था जो मुकुंद के लिए शॉकिंग था, ये शब्द सुनना कि तो मरो। और मरना ही पड़े तो मर जाओ ना। मतलब तुम्हें क्या लग रहा है मुकुंद कि वो भोजन तुम्हें बचा रहा है? क्या तुम भोजन की वजह से जिंदा हो? तुम चावल की वजह से, रोटी की वजह से? जिसने भूख बनाई है, जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने भोजन बनाया है, उसको सिर्फ भोजन की चिंता नहीं है, उन्हें तुम्हारी भी चिंता है। वो कुछ ना कुछ साधन ऐसा कर ही देता है कि इंसान के मुख तक भोजन पहुंच जाता है। चाहे वो स्वयं को ही उठने की शक्ति देता है कि चल उठ और बना, चाहे कोई खिला देता है, चाहे कोई प्रियजन खिला देता है, कोई भी साधन होता है, चीजें पहुंच जाती हैं। ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम उस प्रभु ने बना रखा है। वो कहते हैं तुम्हें भोजन में लग रही है शक्ति, मतलब तुम क्रेडिट भोजन को दे रहे हो। और वो इससे भी एक स्तर ऊपर जा रहे हैं कि जिसने इन सब प्रकारों का सृजन किया है वो तुम्हें शक्ति दे रहे हैं। वही बुद्धि में बात डालते हैं, वही सुझाते हैं, वही रास्ता दिखाते हैं, वही कनेक्ट करते हैं, वही प्रयासों की भी शक्ति देते हैं। और तुम सोच रहे हो कि तुम भोजन से जिंदा हो। यहाँ उन्होंने काफी डीप तरह से कनेक्ट करने की कोशिश की है। और जिसने दिया है वो पोषण भी करेगा। ये कल्पना भी मत करना कि ये रुपया पैसा या ये लोग जो तुम्हारे इर्द गिर्द होते हैं ये तुम्हारा पालन पोषण कर रहे हैं। ये प्रभु ने डिसाइड कर रखा है कि तुम्हारा पालन पोषण इस जन्म में अच्छे से होगा। तो ये उसकी तरफ से ऑर्डर आया हुआ है, तो इसलिए आपका पालन पोषण किया जा रहा है। भोजन तुम्हारा पालन पोषण नहीं। जी मैम। यस। यदि यदि प्रभु तुम्हारी यदि प्रभु तुम्हारी प्राण शक्ति को वापस ले ले तो क्या इनमें से कोई तुम्हारी सहायता कर सकेगा? ये सब तो उस भगवान के ही साधन मात्र हैं। क्या इसमें तुम्हारा कोई अपना कर्तव्य है कि अन्न का तुम्हारे पेट में पाचन होता है? विवेक की तलवार का उपयोग करो मुकुंद। माध्यम की जंजीरों को काट दो, और सब उसके पीछे विद्यमान परम कारण को पहचानो। उस जी उनके यहीं से करते हैं, जी, या यहीं से करते हैं इसको, है ना? हाँ जी, हाँ हाँ, जी। थैंक यू। वो कहते हैं कि प्रभु भोजन वापस ले ले तो तुम जीवित रह सकते हो, और अगर प्रभु प्राण शक्ति वापस ले ले तो वो भोजन क्या करेगा? तुम्हारे प्रियजन क्या करेंगे? तुम्हारे मित्र क्या करेंगे? अगर वो, मतलब तुम कह रहे हो तुम भोजन की वजह से जिंदा हो, मैं कह रहा हूँ तुम प्राण शक्ति की वजह से जिंदा हो। तो अगर अगर भोजन वापस ले लिया जाए तो भी तुम जिंदा कहलाओगे।
पर अगर प्राण शक्ति वापस ले ली जाए, हमने बहुत सारे अघोरी साधु, ये पिछला जो महीना निकला है, तो यूट्यूब पे काफी नए नए एक्सप्लोर किए हमने भी, और एक्सपीरियंसेस कि 20-20 दिन वो कुछ नहीं खाते, 6-6 महीने भोजन नहीं किया हुआ, वो भाव का भोजन करते हैं, कल्पना में खाना खाते, कल्पना में संतरा खाते हैं, कल्पना में बनाना खाते हैं। मतलब इतना अद्भुत खेल चल रहा है उस प्रभु का। हम लोग तो इन इन सब चीजों से बहुत 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 ही पीछे हैं अभी। वो भाव से जल पी लेते हैं, उनकी प्यास भी बुझ जाती है। मतलब उन्होंने अपने अंदर इतनी अगम्य शक्तियां, तो कहते हैं प्राण शक्ति ले ले प्रभु तो भोजन क्या करे, तो भोजन कुछ भी नहीं कर सकता। तो तुम सोच रहे हो तुम भोजन की वजह से जिंदा हो, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि तुम प्राण शक्ति की वजह से, उससे भी ऊपर तुम प्रभु की परमिशन से जिंदा हो। उनकी आज्ञा है तो तुम जिंदा हो, नहीं तो तुम एक सांस भी नहीं ले सकते। माध्यम उनका यही है, कहना वो यही चाह रहे हैं। तो इसमें मतलब अन्न तो केवल पेट में पाचन करता है, और इसमें तुम्हारा क्या रोल है, तुम्हारे हमारी, मतलब एक इंसान की क्या स्किल होती है। वो कहता है मैं जो खाता हूँ ना मेरे को हजम हो जाता है। बोले इसमें तेरा क्या रोल है, तेरी कौन सी स्किल है तेरा खाना हजम करने में, तेरा सिस्टम क्लीन करने में, अंदर से पूरा बॉडी को एवरीडे डिटॉक्स करने में, ऑक्सीजन से बॉडी को क्लीन करने में तेरा क्या रोल है। ये किसी और का रोल है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं। और विवेक की तलवार का उपयोग करो मुकुंद। और ये जो माध्यम बना रखे ना कि इसकी वजह से ऐसे हो रहा है, जैसे प्रेमिका की वजह से प्रेमी जिंदा है, प्रेमिका प्रेमी की वजह से जिंदा है, मैं तो तेरी वजह से जिंदा, तू ना होता तो मैं तो, ऐसा वाला डायलॉग देखते ना मेहंदी पिक्चर में, वो कहते कोई नहीं, नो नो वन इज देयर, ओनली गॉड इज देयर। यू हैव टू कनेक्ट विद दैट सुपर पावर। माध्यम से ऊपर चले जाओ। इस घर की वजह से मैं जिंदा हूँ, अपने माता पिता की वजह से मैं जिंदा हूँ, अपने बच्चों की वजह से मैं सरवाइव कर रहा हूँ, वो कह रहे इससे भी ऊपर चले जाओ। ये माध्यम है सब, ये माध्यमों की डोरी है। इनको भी इनके साथ भी हम या तो मोह से, हम प्रेम से कनेक्टेड है। अगर हम मोह से कनेक्टेड है तो हम कहते हैं हम तेरे लिए करें ना, अब तू मेरे लिए कर, देख मैंने तेरे लिए इतना किया अब तो मेरे, ये मोह है। प्रेम से कनेक्टेड है, मेरा जो रोल है मैं प्रेम वाला लेवल हो। तो वो यही सारी चीजें समझाने चाह रहे हैं हमको कि माध्यम पे, माध्यमों पे मत गौर करो, उसके पीछे जो ईश्वर खड़े हुए हैं, इसके पीछे जो विद्यमान है, जो कारण है, जिसकी वजह से ये माध्यम भी है, जिसकी वजह से, उन पे गौर करो। जी मैम। उनके बेधक शब्द तुम्हें मुझे अपनी किसी गहरी मज्जा से उतरते प्रतीत हुए। सहस तहस नहस हो गई प्राचीन काल की चली आ रही वह भ्रांति जिसके कारण शरीर के आदेश आत्मा को झुका देते थे। वहीं उसी क्षण पर मैंने परमात्मा की सर्व समर्थता का रसा रसा स्वागत। स्वादन स्वादन। किया रसास्वादन किया। आगे के मेरे अभिराम भ्रमणशील जीवन में कितने ही अपरिचित शहरों में वाराणसी के उस आश्रम में प्राप्त उपदेश की उपयोगिता को सिद्ध करने के कितने ही अवसर आए। कोलकाता में अपने साथ लाई हुई मेरी हाँ यहीं एकमात्र तक लेते हैं दौलत मैम, में। या ओके। कितने ही अवसर आए तक लेते हैं, या मुझे लगा यही पैरा चल रहा मोनिका जी, है उनके सिंस डॉक्टर बेधक। मोनिका जी, सिंस डॉक्टर बेथ इज हियर, तो आप थोड़ा सा या कंबाइन कर लें या फिर कट कट शॉर्ट कर लें इसको, एक्सप्लेनेशन को। आई थिंक शी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड अदरवाइज। ओके फाइन। जी, थैंक यू। हाँ, तो उनके मतलब द वे ही वाज टॉकिंग, द थिंग्स ही वाज टॉकिंग वाज वेरी अमेजिंग। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना जहन में उतर जाना, मतलब इट वाज एंटरिंग इन हिज हार्ट माइंड बॉडी एंड सोल की वाओ व्हाट अ ग्रेट थिंग ही इज सेइंग। ये मतलब ये कितना अद्भुत है जो ये बोल रहे हैं। एक होता है ना ही वाज स्टैंडिंग एट अ लेवल, और एक लेवल जिसको बोलते हैं ना भाई लेवल है, एक लेवल क्रॉस किया उन्होंने। ही फील्स लाइक कि मैं एक स्टेप अहेड चला गया हूँ, मेरी एक एक अंदरूनी सी तरक्की हो गई। और जो भी एक ओल्ड परसेप्शंस वुड बी देयर इन हिज माइंड, वो सब कहीं ना कहीं ब्रेक हो गई हैं, वो टूट गई। और जो बॉडी है, मतलब पहले जो बॉडी थी वो सोल को मतलब बेंड करके रखती थी, अभी सोल जो है वो उस बॉडी बेंडिंग से ऊपर निकल गई।
सोल का लेवल, मतलब उनकी सोल को टच हुआ, वो जो सारा एक्सप्लेनेशन था ना, उससे सोल को टच किया, एंड दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और इतनी प्यारी लाइन उन्होंने लिखी कि उन्होंने परमात्मा सर्वशक्तिमान की उपस्थिति का रसास्वादन किया, मतलब ही वाज एबल टू टेस्ट द टेस्ट द इस भूख उनके अंदर इतने सालों से थी, तो वो उसको महसूस कर पाए। कि मुझे तो लग रहा था कि बॉडी सब कुछ है, बट बॉडी इज जस्ट लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, वी आर डूइंग एवरीथिंग विद दैट बॉडी, ये यंत्र है, सिर्फ यंत्र है, पर इसके साथ भावनाएं अटैच हो जाती हैं, तो ये अलग अलग तरह से सोचने और समझने लगता है। That he wants to say. And then when he went to Varanasi ashram, and he went everywhere, तो जो whatever was happened in that Varanasi ashram, तो it was very useful throughout his journey. उसके बाद वो जहाँ जहाँ भी गए। जी मैम। Yeah. Yes. Okay. Yes. The sole treasure which had accompanied me from Calcutta was the sadhu's silver amulet bequeathed to me by mother. Guarding it for years, I now had it carefully hidden in my ashram room. To renew my joy in the talismanic testimony, one morning I opened the locked box. The sealed covering untouched. Lo, the amulet was gone. Mournfully, I tore open the envelope and made unmistakably sure it had vanished, in accordance with the sadhu's prediction, into the ether whence he had summoned it. Over to you, Sunaina. Yeah. Yeah, please share the screen. थोड़ा सा ऊपर करें तुषार। कोलकाता में अपने साथ चली हुई मेरी एकमात्र दौलत थी साधु का वह चांदी का ताबीज, जो माँ ने मेरे लिए रख छोड़ा था। वर्षों तक संभाल कर रखते हुए अब मैंने उसे आश्रम में अपने कमरे में सावधानी पूर्वक छुपा कर रखा था। ताबीज रूपी प्रमाण को देखकर मुझे होने वाले आनंद को फिर से ताजा करने के लिए मैंने एक दिन प्रातः उस बंद डिबिया को खोला। सील बंद लिफाफा तो जैसे का वैसा था, परंतु आश्चर्य, ताबीज गायब था। शोकाकुल होकर मैंने हर संदेह को मिटाने के लिए लिफाफा झाड़कर देखा, तो साधु की भविष्यवाणी के अनुसार जिस शून्य से साधु ने उसे आमंत्रित किया था, उसी शून्य में वह वापस चला गया था। जी मोनिका जी। जी थैंक यू। और कोलकाता से व्हेन ही केम बैक, तो एक ट्रेजर जिसको कहते हैं ना, द ओनली ट्रेजर वाज दैट तावीज, जो मॉम हैज गिवन टू हिम। कि सबने स्टोरी सुनी थी कि जब मॉम का डेथ होने वाला था, तो वो ये जाने से पहले देकर गई थी, एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट सरप्राइज फॉर हिम। कि और बहुत अमेजिंग भी था कि ये तावीज क्या है। और तब एक साधु मिले थे, एंड ही टोल्ड हिम कि ये तावीज जो है ये तुम्हारी यात्रा के लिए है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था, और तुम एक रास्ते पर लेकर जाएगा। और फिर कुछ चमकीला सा नजर आया था। ये सारे एक्सपीरियंसेस उनको हुए थे। ही केप्ट इट वेरी केयरफुली विद हिम, कि ये तो एक बहुत बड़ा ट्रेजर है। और इसी इसी को हाथ में पकड़ने के बाद उनको एक बड़ा मेस्मराइजिंग सा एक आनंद महसूस हुआ था उनको। तो ही हैज टू कीप इट वेरी केयरफुली, ही केप्ट इट वेरी केयरफुली विद हिम। और उन्होंने उसको ना कहीं छुपा के रखा हुआ था बहुत केयरफुली, बिकॉज उनके लिए एक बहुत ही अमेजिंग चीज थी। और क्या होता है कि एक दिन उनका मन करता है कि मैं इसको निकाल के देखूं। अगर किसी को याद हुआ, ऐसे भी उसमें लाइनें लिखी थी कि जिस दिन इसका काम पूरा हो जाएगा उस दिन ये खुद ही अदृश्य हो जाएगा। अगर किसी को याद है, हमने पढ़ा था ये, तो Yes. मेरे को ऐसा साउंड कर रहा है कि ऐसा हमने यस पढ़ा यस था, है यस ना? एग्जैक्टली। आई थिंक यस उन्होंने ये बोला था कि जब इनके गुरु से मुलाकात हो जाएगी शायद, तो यस यस ये यस यस वो हो यस। जाएगा, ओझल हो जाएगा, अदृश्य। अंतर्धान हो जाएगा। हाँ, या यस तो अब वो सील बंद लिफाफा था जिसके बीच में वो ताबीज था, सब कुछ था। और जब उन्होंने उसको खोला, उसको फाड़ा, उनको तसल्ली नहीं हुई, तो उन्होंने उसको फाड़ दिया, बट नथिंग वाज देयर।
इट वॉज एम्प्टी। और कहीं ना कहीं वो एक शून्य था, बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग इन द एट जीरो जब वो तावीज उनको मिला था। तो ही वॉज थिंकिंग लाइक कि अब ये तावीज गायब हो गया तो अगेन ही इज एट द सेम पोजिशन, वो फिर से जीरो पर खड़े हुए, जबकि वो जीरो पर नहीं खड़े हुए थे, वो बहुत आगे जा चुके थे। ये अब हम आगे पढ़ेंगे अगले पैराग्राफ्स में। जी मैम। Thank you. My relationship with Dayanand's followers grew steadily worse. The household was alienated, hurt by my determined aloofness. My strict adherence to meditation on the very ideal for which I had left home and all worldly ambitions called forth shallow criticism from all sides. Torn by spiritual anguish, I entered the attic one dawn, resolved to pray until an answer was vouchsafed. Merciful Mother of the Universe, teach me thyself through visions or through a guru sent by thee. Over to you, Sunana. Yeah, Let me share it. sure. Yeah. Yes. दयानंद जी के शिष्यों के साथ, एक सेकेंड, दयानंद जी के शिष्यों के साथ मेरे संबंध क्रमशः अधिकाधिक बिगड़ते चले गए। मेरी दृढ़ उदासीनता से चिढ़कर सारे आश्रमवासी मुझसे दूर होते गए। जिस आदर्श के लिए मैंने अपने घर को और अपनी सारी लौकिक आशा आकांक्षाओं को छोड़ दिया था, उस आदर्श का ध्यान करने की मेरी दृढ़ नेम निष्ठा पर चारों ओर से छिछली तनाकाशी होने लगी। दारूण आत्मिक दुख से व्यथित होकर एक दिन भोर से ही मैंने यह निश्चय करके अटारी में प्रवेश किया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रार्थना करता ही जाऊंगा। हे करुणामयी जगन माते, जी या यहीं तक देखते हैं सुनैना। क्यों? थोड़ा सा जी। हाँ जी मलिका। ठीक है, आवाज आ रही है? जी। हाँ हाँ, यू वेरी मच। हाँ, ओके। तो अब क्या हुआ कि जो दयानंद जी थे उनके शिष्यों के साथ, बिकॉज वो तावीज उनके पास से गया, तो एक लगता है ना कि मेरे पास एक चीज पड़ स्ट्रांग हूँ, ऐसा फीलिंग। तो उनको लगा जैसे वो एकदम गरीब हो गए, जीरो हो गए एकदम। मतलब ही वॉज फीलिंग लाइक दैट, वेरी डिस्टर्ब। और जो डिसिपल थे दयानंद जी के, उनके साथ भी वो चिड़े चिड़े से घूमने लगे। और आश्रमवासी भी, मतलब ऐसे होता है ना, कोई बात करता है तो आगे से या तो जवाब ना देना, या थोड़ा टूट टूट के पढ़ना, या खाने को पढ़ना आगे से, और ऐसे गुस्सैल होके घूमना। तो ही वॉज फीलिंग वेरी सैड एक्चुअली एंड डिप्रेस्ड ऑल्सो। तो आश्रमवासी भी ने भी उनसे डिस्टेंस बनाना शुरू कर दिया। और जो इतनी सारी उम्मीदें, होप एंड जो कुछ भी वो सोच कर आए थे कि आई विल डू दिस एंड दैट, तो वो उससे भी बहुत ज्यादा मतलब परेशान होने लगे कि मैं जिस काम के लिए निकला था वो, और सब चीजों का कनेक्शन देखो वो तावीज के साथ जोड़ रहे हैं कि वो था तो सब है, अब नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दैट काइंड ऑफ फीलिंग ही वाज थिंकिंग। और ऐसी नियम निष्ठा जिसके लिए वो बैठते थे, अटारी पे जाते थे, संध्या करते थे, वो सारी चीजों से डिस्टर्ब होने लगे। और उनका जो ध्यान था वो पूरी तरह से मतलब खत्म होने लगा। जी। छिछली सी तानाकशी होती है ना, छिछली सी तानाकशी। आदर्श का ध्यान करने की मेरी, मतलब मैं अपने ही जो मेरी ध्यान संध्या है जिसको मैं करता था, उसके लिए मैं, मतलब मैं खुद को ही ताने मारने लगा कि अच्छा तू निकला था बड़ा, तू बड़ा घर से निकला था, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, एंड नाउ यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो मतलब खुद के अंदर से उनको ताने आने लगे। जी। Yes, Sunana, please read या next. दारुण आत्मिक दुख से व्यथित होकर एक दिन भोर में ही मैंने एक निश्चय करके अटारी में प्रवेश किया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रार्थना करता ही जाऊंगा। हे करुणामयी जगन माते, या हो तुम स्वयं ही दिव्य दर्शनों के माध्यम से मुझे सिखाओ
या फिर जिसके माध्यम से सिखाओगी उस गुरु को भेजो। दिस इज सो वंडरफुल, दिस इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल। तुषार थोड़ा सा ऊपर करें प्लीज। कई घंटे बीत गए पर सुबह सुबह कर की जा रही मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आया। अचानक मुझे ऐसा लगा मानो मैं सशरीर ऊपर उठता हुआ असीम महाशून्य में पहुंच गया हूँ। सुनैना तुम्हारे ओके इससे पीछे ओके हो रहा है इनफैक्ट। ओके। ओके ओके हाँ, तो बहुत ही उनको दुख हुआ। एक दिन वो अटारी में गए और उन्होंने ही सेड कि जब तक मुझे भगवान आप मिलोगे नहीं ना, तब तक मैं ये प्रार्थना करता जाऊंगा। या फिर मुझे मेरे गुरु से मिलवा दो जगन माता, या फिर मुझे दर्शन दे दो। शो मी द वे, शो मी द पाथ, आई वांट टू सी यू, आई वांट टू फील यू। मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। आइदर शो मी द वे, मुझे नजर आ जाओ, और या फिर सेंड एनी गुरु टू मी, जिसके माध्यम से मैं तुमको पा सकूं। और बहुत सारे घंटे बीत गए एंड सुबह सुबह का मतलब ही वाज क्राइंग एंड प्रेइंग टू द गॉड कि कुछ तो रास्ता दिखाओ, बट नो आंसर हैज कम। एंड ऑल ऑफ a sudden he was feeling like his whole body is you know getting up in the air, और हवा में उठ रही है उनकी बॉडी, उनको ऐसा महसूस हुआ। अब वो सोल से ऊपर जा रही थी या बॉडी ऊपर जा रही थी, दैट ही विल डिस्क्राइब। यस। Yeah. The passing hours found my sobbing pleas without response. Suddenly, I felt lifted as though bodily to a sphere uncircumscribed. The master commits today. A divine womanly voice came from everywhere and nowhere. The supernal experience was shattered by a shout from a definite locale. A young priest nicknamed Habu was calling me from the downstairs kitchen. Mukund, enough of meditation. You are needed for an errand. Another day I might have replied impatiently. Now I wiped my tear swollen face and meekly obeyed the summons. Together, Habu and I set out for a distant marketplace in the Bengali section of Banaras. The ungentle Indian sun was not yet at zenith as we made our purchases in the bazaars. We pushed our way through the colorful medley of housewives, guides, priests, simply clad widows, dignified Brahmins, and ubiquitous holy bulls. As Habu and I moved on, I turned my head to survey a narrow, inconspicuous lane. Over to you, Sanana. And one moment. या Yes. तुम्हारे गुरु तुम्हारे गुरु आ जाएंगे महाशून्य से, मानो सब तरफ से पर न जाने कहां से, सब तरफ से पर न जाने कहां से एक दिव्य नारी स्वर गूंजा। इसमें से असीम जगत के उस दिव्य अनुभव को एक निश्चित स्थान पर आई चीख से छिन्न भिन्न कर दिया। नीचे रसोई घर से हबू नाम का एक युवा पुजारी मुझे पुकार रहा था। मुकुंद, बहुत हो गया ध्यान, यहाँ एक कमरे पर तुम्हें जाना है। कोई दूसरा दिन होता तो मैंने पलटकर जवाब दे दिया होता, परंतु अब मैंने अपना आश्रु शक्ति रो रो कर सूजा हुआ चेहरा पहुंचा और चुपचाप उसके पास चल दिया। हबू और मैं वाराणसी में हमारे आश्रम से दूर स्थित बंगाली टोले के बाजार में जाने के लिए निकले। हम बाजार में सामान खरीद रहे थे। सूर्य तप हो रहा था, पर अभी मध्याह्न नहीं हुआ था, इसीलिए उन्हें उसने अपना उग्र रूप अभी धारण नहीं किया था। हम दोनों गृहिणियों, गाइडों, पंडे पुरोहितों, सादे वस्त्र धारण कर रखी विधवाओं, सम्मानीय ब्राह्मणों और वाराणसी में सर्वत्र विचरणशील सांडों की रंग बिरंगी भीड़ में से रास्ता निकालते जा रहे थे। हम आगे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि मैंने अपनी गर्दन घुमाकर एक आसानी से ध्यान में भी न आने वाली संकरी गली की ओर देखा। Yes. जी, यहीं तक लेते हैं, पहले थोड़ा नीचे करना तुषार जी।
तुम्हारे गुरु आ जाएंगे, एक आवाज उनके कानों में महाशून्य से नारी के स्वर में गूंजी। वन वॉइस हैज कम, योर गुरु विल कम टुडे। इतने में ही जो एक असीम जगत का एक एक दिव्य अनुभव होता है, उसने सब कुछ छिनमिन कर दिया। मतलब वो एक आवाज के साथ कनेक्ट हुए और इस दिव्य अनुभव को एक एक चीखती हुई आवाज ने छिनमिन कर दिया कि हाबू चुथाम उनको नीचे रसोई घर से पुकार रहा था, जो एक पुजारी था नीचे। तो ही वॉज कॉलिंग हिम, और वो उनको ये आवाज आ रही है कि तुम्हारे गुरु आ जाएंगे, और नीचे से वो उनको कॉल कर रहे हैं जो रसोई घर में है। तो मुकुंद, बहुत हो गया तुम्हारा देर, नाउ कम डाउन एंड वी हैव टू गो एंड डू सम वर्क। किसी अर्जेंट काम से हमको जाना है, एंड कम डाउन। एनी अदर डे, बिकॉज ही वॉज क्रिबिंग फ्रॉम सो मैनी डेज, तो इफ इट वुड बी एनी अनदर डे तो शायद वो क्रिब करके आंसर देते, बट अभी अभी उन्होंने जगन माता की आवाज सुनी थी, तो ही वॉज वेरी साइलेंट। जो रो रो के उनका मुंह सूज गया था, और मतलब वो दुखी थे, उस जोन से वो बाहर going. So many people were passing them. जिस किया है, some people, ladies, gents and रंग बिरजे साउंड एक भीड़ में समाज से आती है। Those classes were coming, और तभी ध्यान भी ना जाने वाली, यानी कि बाई चांस, कहते हैं ना, बाई चांस मैंने उस तरफ देखा, तो आई हैव सीन लेन, उनका मतलब ना ध्यान देने वाली लाइन। मोनिका जी, आपकी ना आवाज बहुत ज्यादा मिस हो रही है। वी आर लूजिंग योर वॉइस अ लॉट। अच्छा, कम आ रही है? नहीं, आ ही नहीं रही है, बीच में बहुत ज्यादा मिस हो रही है। अच्छा, मैं ना एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ। जी, विल वेट। यस। नहीं यस। यस मोनिका जी, हैव यू रीजॉइंड? She left and she'll join again. I या अब think, आ रही है? जी मोनिका जी, you're audible. हाँ, बस इस बट टुडे ही वाज साइलेंट बिकॉज कि तुम्हारे गुरु तुम्हें मिल जाएंगे। तो दे वर गोइंग टू द मार्केट, बंगाली मार्केट, और मार्केट में सो मेनी पीपल वर देयर, लेडीज, जेंट्स, पुरोहित, गाइड, सो मेनी पीपल वर देयर, and he was crossing them. Both of them were crossing along, and suddenly he saw a lane, very thin lane, और उसकी तरफ अचानक से ध्यान गया, जो ध्यान ना जाने वाली लेन थी। मतलब हमारा ध्यान भी नहीं जा सकता, ऐसी छोटी सी एक संकरी सी गली जा रही थी, तो अचानक उनका ध्यान उस गली की तरफ गया। जी। We have read till this paragraph only. So do you suggest we can move forward or read one more paragraph? या फिर मोनिका, या मोनिका जी, जी। what do you suggest? हाँ, एक पैरा पढ़ते हैं, संकरी गली में क्या मुझे था। लगता है कि आप ही इसको फर्दर एक्सप्लेन कर दो, इन कंबाइनिंग इट इन इंग्लिश ऑल्सो। जी जी, सुनैना जी, आप एक बार रीड कर दो, फिर मैं कर या दूँ। श्योर। गली के छोर पर स्वामियों का गेरुआ परिधान धारण करे हुए महापुरुष निकल खड़े। उन पर दृष्टि पड़ते ही मुझे ऐसा लगा मानो युग युगांतर से मैं उन्हें जानता था। एक क्षण के लिए मेरी प्यास आंखों ने उनका लोलुपता से पान किया, परंतु फिर मन में संशय जाग उठा। मेरा मन कहने लगा, इस परिव्राजक सन्यासी का चेहरा तुम्हारे किसी परिचित से शायद मिलता जुलता है। स्वप्रदर्शी चलते चलो। जी, इतना जी। ही करते हैं, या आई थिंक बहुत है। या इतना ही करते हैं। या तो he has seen a person, a Swami. He was standing there,
in Swami clothes, Gerua clothes, and as he has seen him, तो he felt like कि कोई बहुत युगो युगांतर से he is waiting for someone and he is the same person. ऐसा उनको फीलिंग हुआ उनको देखने के बाद। और उनकी प्यासी आंखों ने, मतलब आंखें जो उनकी बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, उन्होंने लोलुपता से, मतलब लालच में होता है ना एकदम, ये कहाँ थे तुम, ऐसा होता है ना कि मतलब मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम कहाँ पे थे, लोलुपता से, बहुत प्यार से लोलुपता से देखा। तो देन उनके मन में एक संशय सा जा गया कि जैसे होता है ना कि मैंने तुम्हें कहीं देखा हुआ है यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा। आई हैव सीन यू अर्लियर, इस जन्म में देखा है, पिछले जन्म में देखा है, कब देखा है पता नहीं, बट कुछ फेसेस बहुत रिजेम्बल करते हुए लगते हैं कि तुम मेरे किसी रिश्तेदार से रिजेम्बल करते हो या मैंने तुम्हें कहा था। तो ऐसा ही उनको लगा उनको देखते, आई हैव सीन यू समवेयर, आपका चेहरा किसी से, वो मन ही मन बात कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे, अपने मन से बात कर रहे थे कि आई हैव सीन। स्वप्नदर्शी चलते रहो, मतलब स्वप्न मत देखो, फिर अपने आप से ही बात करें कि चलते रहो, डोंट सी ड्रीम्स एंड मूव अहेड। जी मैम। Yeah, I'll quickly read the English version for the convenience of Dr. Beth. Uh, um, the supernal experience. Okay, this was done. Hmm. A Christ-like man in the orchard robes of a Swami stood motionless at the end of the lane. Instantly and anciently familiar he seemed, for a trice my gaze fed hungrily. Then doubt assailed me. You are confusing this wandering monk with someone known to you. I thought. Dreamer, walk on. After 10 minutes, I felt heavy numbness in my feet, as though turned to stone, they were unable to carry me farther. Laboriously, I turned around. My feet regained normality. I faced the opposite direction again. The curious weight oppressed me. आज हम यहीं तक टेकअप करते हैं. And then we will have time for sharing our reflections. I can see some new guest here on screen with us. Oh, nice. Lovely. Hello, welcome to the InSync and Mind Openers Reading Club, my little new He was guest. disturbing, he was barking, so I thought of keeping him busy Oh, in my lap. I have a baby girl. Oh, and Yeah, here's mine. all right. Okay, Ji. So we'll have a 2 minutes of silent time and then we'll have this room for sharing reflections. Thank you.
Okay, okay. The room is open for everyone to share their reflections and insight. And we are really looking forward to have it from Dr. Beth today because we have been missing it for quite a long time now. Yeah, please unmute yourself, Dr. Beth. Yeah. So there's a lot in this that is just so beautiful. The two pieces that I want to comment on are how, can you hear me okay? Is the mic okay? Yes, perfectly okay. Good. The first comment is how in his depth of longing for union with God and not having support in his community, he calls out to Divine Mother to either teach him directly or send a guru, and he gets a response and is told that he'll meet his master. And so often it's from that place of our own anguish that we call out in prayer, and our prayers are then answered. There's something about that depth of experience which allows us to become more receptive. But then the other piece that's so interesting, which is also so typical of us, is that when he actually then sees his guru, he doubts it. But his body knows more than his mind, and his feet become unable to turn away, that they start acting like lead. And when he again then turns towards his teacher, he's able then to move again. And it just talks about how we have so many different ways of knowing, and our intellect is not always our greatest ally. So I will just keep it short tonight because I know other people will want to share as well. Yes, thank you. Thank you for this great sharing, Dr. Beth. Yes, Sheetal, would you like to share and reflect more on the same? After a person or two, because I'm just sending my dog out. All right, all right. Yes. I would invite others to share your reflections on the reading today. Dr. Yogini, Sunaina. मुझे एक शिवाजी की घटना याद आ रही है एक्चुअली. Yes, My father had recited that sure. story of Shivaji and his guru, Samarth Guru Ramdas. But again, I'll be able to do that only in Hindi, bit difficult in English. Actually, Dr. Beth, there was a great king, Maratha king Shivaji, if you know him by name, I don't know. He had a spiritual guru by the name Guru Samarth Guru Ramdas. There is a very, it's a story similar to what we have learned today in this, the insight we got today in this part which we have read today. Actually, Shivaji became not arrogant, but he had a belief that he's self-sufficient. He doesn't need like हिंदी में ही कर पाऊंगी. I'm sorry. Yeah, please go ahead and we would translate it. Okay, fine. Actually, उनको ये थोड़ा सा अभिमान हो गया कि like मैं ही सब कुछ करता हूँ और it's only me who is doing everything. तो उन्होंने उनको एक युद्ध क्षेत्र में एक जगह पे लेके गए, और ये मुझे फादर ने मुझे बताई थी. एक जगह लेकर गए और उन्होंने बोला शिवाजी को कि आप ये जो सामने पत्थर हैं, rocky area था, it was a mountain area, and the guru told Shivaji to ask his men to dig that rocks. तो उन्होंने अपने सेना से लोग बुलाए. He called his army men to dig that place. और नीचे अंदर पत्थरों के नीचे से एक lizard निकली, rather एक lizard निकली. और गुरु ने फिर बोला कि देखो शिवा, तुमने यहाँ रखा है. He was trying to break his haughtiness. और फिर वो उस लिजर्ड के मुंह में एक कीड़ा भी था.
तो वो उनका अभिमान था कि मैं ही सबका वो करता हूँ, सबको खाना मैं दे रहा हूँ, सबका ध्यान में रखता हूँ। तो गुरु ने उनका वो अहंकार तोड़ा कि देखो ये इस रॉक्स के नीचे, बीच में, दो रॉक्स के बीच में जो क्रेविस होता है उसमें एक लिजर्ड है और लिजर्ड के मुंह में एक कीड़ा है। तो वो समझाना ये चाहते थे कि ईश्वर जिसका भी जन्म देते हैं, जिसको भी धरती पर जन्म देते हैं, गॉड whenever he is giving birth to anybody on the earth, he will provide the basic necessities to each and everyone. Luxury has got no limit. You can buy an iPhone, you can buy a Mercedes or an Audi, but the basic necessity like food, water, and a Clothes and place to dwell, shelter. a dwelling place, yeah, that he gives for everybody. मुझे मुझे एकदम से कोरिलेट हो गई स्टोरी, माइंड में उसी टाइम आ गई। एक्चुअली मैं ना आज का पार्ट पहले से पढ़ के बैठी हूँ। आई एम अ गुड चाइल्ड टुडे, स्टूडेंट टुडे। Good, आई हैव रेड द पार्ट, good. so I was doing alongside some work, but this Mm. story came to my mind immediately. Good. I think, The Dr. Beth, you were able to grasp the story. It was about Shivaji Maharaj, because he was full of arrogance, and his teacher wanted to teach him a lesson. And through this story, that you are not the one who is taking care of all your kingdom. The supreme power, universal power, good Lord is taking care of everyone, because the lizard is having an insect in its mouth. So that means you are not providing. You are not the provider. It's him or her, the universal power, who is greatest of all. So that's what Dr. Yogini ji wanted to convey, I feel. Am I right, Yogini ji? right, right. Yes, thank you. Great share. Thank Yes. Who is coming next to share the reflection star? शीतल। शीतल, मेरे को पता नहीं आपके नाम से पहले डॉक्टर शीतल क्यों लग जाता है। अभी भी यही बोलने वाली थी, डॉक्टर शीतल। Sheetal is You'll about make to finish her PhD, or she is about to take admission in PhD, कुछ I तो believe. है, there is something. Tathastu. So be it. See, you always call me by doctor. One day you'll make me a doctor for sure. Yes, yes. I'm not yet. Neither do I have any plans, but it's okay. Thank you so much. Reflections. I think one thing that I shared last time, I want to repeat that it says, do not imagine that rise maintains you or that money or men support you, which means ऐसा नहीं है कि खाना आपको एनर्जी दे रहा है. It's not the food giving you energy, because the last reading, I concluded with one of the examples that when we eat a lot and when we eat, oily food, and when we just feed our taste buds, at most of the times we feel so full that we go drowsy, we want to sleep. It's so oily, fatty food. So is the food actually giving us energy? Maybe not. So maybe, similar things. I heard about exercising. I was quoting that last time, that sometimes people say exercising or sleeping, sorry, not exercising, sleeping gives you rejuvenation, and you gain your energy back and all of that. Even that was in question, that if you sleep a lot and if you overdo your sleep, you tend to sleep even more. I mean, sometimes I've seen that if you go on sleeping for 9 hours, 10 hours, you would not want to wake up. Then also you're so lazy and drowsy. So it's not the food or the sleep that's actually giving you all the energy. And in this case also, it's wonderfully said that think if Lord withdraws your life breath. So it's the prana that's more important. Rejuvenating at the prana level is more important, not just by stuffing yourself with, food. सिर्फ खा खा के पेटू नहीं होना है. अपने प्राण एनर्जी को, अपने all chakras, maybe if they are rejuvenated, then I think it's more beneficial. And other thing that one line that caught my attention was torn by spiritual anguish. Just because his amulet, unka tabiz, it just vanished, it disappeared, and he is so disturbed. And that irritation is there in him. Uh, by the time that he hears the person calling from downstairs, till that time he's so disturbed. And I think we go through certain times during the day. Today I was feeling a little restless, and it's something that I resonate with today. आज मुझे बहुत बेचैनी सी हो रही थी कि मुझे कुछ और जानना है. I want to learn more. I want to
seek more. And that restlessness I felt today, and I could relate to in this topic, this paragraph. And I'm wondering, if he could hear a heavenly voice, उनको एक आकाशवाणी हो रही है कि मिल जाएगा सब कुछ, या आपके गुरु मुझे भेज दो और उनको मिल जाती है एक आकाशवाणी, that heavenly voice is heard by him. I'm waiting for that to come. And I am waiting that heavenly voice will show up, and I would hear that too soon. But a lot of insight actually. I'll keep it short. Yeah, that much for sure. Thank you. Thank you, Sheetal, for this beautiful share. Even I have summarized it that life force is most important thing that one can have. It's important than your relations, then your food, then water, then all the materialistic wealth that you could ever accumulate. And body is just an instrument. और जो another thing थी, जो उनकी longing थी, seeking थी for the union of God, that was something, मतलब हाँ, हम लोगों में वो नहीं है, पता नहीं मुझे नहीं लगता आ सकती, जैसे आप कह रहे हो कि आज रिलेट कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो फॉर एवरीथिंग, नॉट जस्ट विद द यूनियन ऑफ गॉड, फॉर एवरीथिंग, अगर वो सेम इंटेंसिटी का अगर आप में वो पैशन हो या सीकिंग हो, देन यू विल बी एबल टू गेट टू व्हाट यू वांट इन योर लाइफ. और हम कुछ दिन पहले मैं और सुनैना भी डिस्कस कर रहे थे कि जब इवन आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्टेन थिंग्स कि क्या करना है, क्या करूं कि और चीज़ें अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए. तो मैं सुनैना को बोलती थी कि यार आई वुड वांट टू शट द डोर्स फ्रॉम अराउंड, और मैं बस खुद बैठ के खुद सोचूं कि क्या कर सकते हैं कि तू थोड़ा सा ग्रो कर सके, थोड़ा सा इम्प्रूव कर सके, थोड़ा सा इवॉल्व हो सके, थोड़ा समझ आए कि कहाँ जाना है, क्या करना है. एंड आई वॉन्टेड टू गेट द आंसर्स टू दोज क्वेस्ट. और वो सीखिंग उतनी इंटेंस आई थिंक नहीं है जितनी इनकी थी, कि ही वॉज क्राइंग, सॉबिंग, and his face was swollen because he has been weeping for quite a long time. वैसा नहीं आता, पर वैसा मोमेंट आई थिंक वो भी एक अलग ही फीलिंग है, अगर इफ वी कुड एवर फील दैट और गो थ्रू द सेम. But this was beautiful. This was really beautiful for the day. Yes. जी Dr. um, Yogini. इसका शीतल कुछ सबसे कह अच्छा रही है, भूमिका पार्ट जी. इसका इसका सबसे अच्छा पार्ट ये था, आज आप लोगों ने समझा नहीं, कि हमारी मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है कि हम क्या कर सकते हैं. तो आम इंसान की मानसिक शक्ति इतनी मजबूत नहीं होती कि वो क्या कर सकता है. जिसकी मजबूत हो जाती है, तो वही बताया ना, आज अघोरी का बताया इन्होंने, कि वो सोच में ही खा लेते थे, सोच में ही पानी पी लेते. तो ये मानसिक शक्ति के ऊपर भी बहुत कुछ हमारा कुछ होता है. हमारा माइंड पावर हमारी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, जो हम लोगों में नहीं है, शायद सुन के भी नहीं है. हम इतनी दूर तक नहीं जा पाए हैं, और ना शायद पता नहीं जा पाएंगे नहीं पाएंगे. जी इसमें हम समझ रहे हैं इस बात को. अब कितना समझ रहे हैं ये तो हमारे ऊपर क्या कहें. क्योंकि बहुत कुछ हमें बार बार समझाया जाता है, पर हम फिर भी ये तामसिक शक्तियों में फंसे हुए हैं, जी. मानसिक शक्तियों के बजाय. That's right. That's थैंक यू. right. Beautiful. Thank you, Bhumika ji. And those who wanted to share, please raise your hands. Like in between, हाँ अगर किसी को कुछ शेयर करना है, I would request everyone to please raise your virtual hands. तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है, जैसे आई वाज टेकिंग योगिनी जी, भूमिका जी ने एकदम बोला, तो थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए भी. सो अगर किसी को भी शेयर करना होती है तो स्क्रीन पे वो रेज कर सकते हैं, या फिर वर्चुअल हैंड जो है वो रेज कर सकते हैं. जी डॉक्टर योगिनी जी. I was about to say this, which I have, I think, already told. Whenever our yearning is yearning to attain the supreme power is ultimate, like we yearn for a loved one in our life, that is for our body. But for our soul, when the yearning goes very high level, then that supreme power appears before us. मैं प्रेमानंद जी को सुन रही थी, वो ये बता रहे थे, there is a spiritual guru, Dr. Beth Premanand ji, he is in Vrindavan.
he was telling in one of his discourse, I think I heard today or yesterday, I don't remember. Somebody asked him a question like, in these trying times, this is Kalyug, Ghor Kalyug, we say in Hindi, like the tough times for all of the human beings and all life forms, that how to attain God. And he said, in these times, if you call out your deity's name, it may be anybody, maybe Shiva, maybe Radha ji, maybe Krishan ji, maybe Bhagwan Ram, or anybody else. It is with Naam Simran, like chanting of the name constantly. It should be with your every breath. Like whatever you keep on doing, whatever you feel like currently I am doing Fennel. I'm doing this Methi alongside listening because I had read already this part. So today I was a bit doing this thing also. But constantly the name chanting should go in with every breath. And when it is so intense, like we yearn for some loved one in our life, when it's so intense, that supreme power, he really appears before you. And that time, like we feel we will ask him this, we will talk to him that. At that moment, we can't do anything. It's just the tears rolling down and we can't do anything else. Like yesterday only, I went to attend Kirtan in ashram in RK Puram. Like when some chanting is there and it synchronizes with whatever is going on at that moment in your mind, tears automatically start rolling. It's not that you show to somebody that you are weeping. Love with God is something which you will feel internally if you have that intense love. It's nothing to show off. It's nothing, it doesn't come out on itself. Like now, if you tell me you weep, I can't weep. But if you take some physical thing from me, I might weep. But that thing is very personal. That thing comes with the feeling, with the internal feeling. Very intense feeling, it has to be there. Then God appears on its own. Yes, true, Dr. Yogni. Certainly, when you have that longing, that deep call for anything, let's say in this case, union with God, then sorry, the God will appears in one form or the other, and we all are on the same journey. Let's see, when we find that goal, whatever our goal is, when we get to that. Thank you for this sharing. Nalini ji, are you still here? Okay, Nalini ji, 1 second. Those who are feeling or getting delayed, they can leave, but I have to really address Nalini ji's question, which she has posed a couple of sessions before, and she left the session. तो उनका question ये था कि how these sages or saints, by doing sacrifices or deep meditations, contributing in the evolution of the society. So their contribution, she says, they are not contributing. They are just sitting in the mountains, hill, doing tapasya, meditation. How are they contributing? So this was the doubt in Nalini ji's mind, which was addressed by Sheetal. And if I recall that, Nalini ji, Sheetal, do you remember what you said? You are on mute. Yeah. Carry on. I said, if you remember, carry on. I do Yeah. remember a part. Yeah, Yeah. but I do. You said QK, since the entire universe is full, is made up of energies. So whatever practices, meditative practices they are doing up hills in the mountain, it contributes to the earth also. And that's how we are getting benefited out of the sacrifices or meditation practices that they are doing, because everything is made up of energies. So what they accumulate, it doesn't retain or sustain to them. It passes on to us, human beings on this earth. And thus, they're contributing. Second is, when we as human beings, we put certain limiting beliefs, limits in ourselves. But those sages or saints doing such hardcore practices, they become the epitome of sacrifices and hardcore practices that they have been doing there. If they can, why can't we in our field, in our respective field? If they can do it there, that means body doesn't have a limitation, mind doesn't have a limitation. This is only proven
by those sages and saints who are sitting in Himalayas and doing these practices. So that's how they're also contributing in this way too, that your body and mind do not have any limitation. It's us who put the limitations. But as we have already seen, as these sages, they have been doing these meditative practices in -5 degree or -30 degree, right? How is it possible? They don't have a single piece of cloth on their body. They're completely naked and they're still doing that. And they are alive. They're much more stronger than we who are consuming nutrition and pata nahi kya kya supplements. They are healthier physically and mentally, both ways. So that's how they are contributing. As far as I remember, Sheetal, you came up with these points, and I completely agree, and I completely resonate. That was aptly answered and addressed to Nalini ji's question. Nalini ji, are you able to get the answer to how they are contributing? If you are Yes. listening. Yes, हाँ yes. नहीं, I am listening today. I am not feeling well, तो मैं इसीलिए Okay, थोड़ा सा no रिलैक्स problem. सुन रही हूँ. But did you get the And answer? yes, yes, I have got the Thank you. answer. Great. Okay, Dr. Beth thank you. wanted to share something more. They're also contributing by being an example for us on so many different levels. One is that we can be free from our social and family conditioning. We can separate ourselves from that, whether we do it psychically within our own being or physically by removing ourselves to engage in deep communion with our realized self, our true self. So they're an example that that's possible and that that difficult choice can be made. They're also giving us an opportunity to examine ourselves in beginning to ask, so what is it that's blocking me from being able to discover within myself this capacity to be that dedicated to what's most important? What's most important to me? What's most important is that union with the divine, union with God. How is it that I am not making that my primary um, commitment? And, it's also challenging to do that as a householder when we have family and children. So finding how to make our householder life a sacred path is another conversation that is being asked of us. If we're not doing it that way, we have to ask, so how can I do it here in my life? So those are my thoughts that I'd like to contribute. Thank you. Thank you. So to add on and to just simplify what Dr. Beth has just added on to what Sheetal has explained. So 2 points came up by Dr. Beth. This is the most important thing that we have for us is like relations, our families. But these people, they prove it that there is something more beyond that, which is most important. And breaking that bond with the families is possible physically, emotionally, and mentally, and spiritually. They do it. This is what they prove. And the second is to be dedicated for the most important thing in your life. For them, it is union with God. For you and us, maybe our respective goals. But to be that dedication and commitment and discipline, this is worth an example that we can learn from these sages who are sitting in Himalayas, and we feel they are not contributing. They are. They are contributing in their own respective ways. Thank you. Thank you, Dr. Yeah, Beth. I think I just want to add on to this, Tushar. I think I just shared last time also. I just heard it somewhere. Like some people like contribute through their physical bodies, and some people contribute through their minds, and some people contribute through money they have or resources they have. So I think they are contributing through their bodies and through their minds. If not through their bodies, right, but through their minds, like they are contributing a lot. I mean, the prayers they do, um
with that conviction, with that zeal, or like, yes, as you said, like consistency, discipline, and so many more like traits, like they build in themselves, and like sankalp shakti, they build in themselves, and a strong willpower. Through strong willpower, they give a very, very like a refined example. And when I used to go to BK, I remember in center they always say like, आप तन से, धन से, मन से, किसी भी तरह से आप सेवा में जो है अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं. तो आई थिंक दे आर कंट्रीब्यूटिंग थ्रू देयर माइंड. That is evident actually. Yeah. Thank you. Thank you for adding up, Sunaina. Yes. Over to you, Sheetal. You wanted to say? Yes. Third point I recalled that day I mentioned was that every soul is on its own journey, and by judging someone's situation and what their contribution is, questioning that itself will put us into a situation where we will have to experience it. Either we have gone through such a soul level of, I don't know, where does it fall in the hierarchy? Does it come early or later? Are they have they gone through what we are going through right now and then reached there, or the cycle is vice versa, or it starts from wherever you start from? So we don't know the evolution, the soul's journey. But without judgment, if we judge something, like if we judge a lion why it's eating a rabbit, then one day you will become a lion and then you'll have to eat a rabbit. That's what I've learned. So instead of judging, let their journey be, and try to seek learnings out of their journey instead of putting a question on wo kya kar rahe hai, what are they contributing. Because one fine day when you will be on that path, because you will reach there someday, some lifetime, then people might find you weird. What are you doing? So never judge, and just let them be, because unka soul ka journey hi alag hai. Their cycle is different than ours. So we are in a different cycle, they are in a different cycle. Let's try and learn that they are giving us, setting example of dedications, discipline, endurance of the weather, and what not. So much to learn from. Thank you. Thank you. Yes, one point was left and you beautifully added. Thank you. I think no, it's sure that we have already taken 20 minutes, and thank you. I respect your time. Thank you everyone for joining, sharing your reflections, for being a part of this session. So with a concluding prayer, we would wind up the session. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukh bhag bhavet. Om Shanti, Shanti, Shanti. Shant. Thank you, everyone. Thank you. Thank Shubhratri, you. good night. Thank Thank you, you. everyone. Mon- See you Thank you, again. Monica Tushar, ji. Thank you. तुषार, जी Thank you. मोनिका Thank मोनिका you. जी को बिना कुछ कहे नहीं Thank जाने you. देना. उनकी साइड समय नहीं मिले, तो चुप रहती है. मोनिका जी, आप भी कुछ बोलिए ना. जी. मोनिका जी जब बोलती हैं तो बहुत अच्छा बोलती हैं. वो ना चैप्टर में साथ साथ इंसाइट्स हो गए थे, जैसे कि सबने कि सब रिलेशनशिप्स, पैसा, जितना भी हमारे आसपास चीजें हैं, इन सब से ऊपर उठना है. हम बातें कर रहे हैं, बातें करना आसान है, पर जब हम उसको एक्शन में लाते हैं तो प्रयास लगते हैं. क्योंकि हमें जिस तरह की हैबिट्स, आदतें और हमारा सोचने का जो तरीका है, उससे बाहर आने में हम सबको ही समय लगेगा. ये एक रात की बात नहीं है, इसमें समय लगता है. तो हम सभी प्रयासरत है, हम सभी इसीलिए ये किताब पढ़ भी रहे हैं. और शायद भगवान ने ही हम सबको, जैसे हमने पढ़ा है इस किताब में कि हम खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो यंत्र मात्र हैं, हमें जैसा कहा जा रहा है हम कर रहे हैं. तो ये सोच के हम सबको खुश होना चाहिए कि हम एक अच्छी किताब से जुड़े हैं, एक अच्छी यात्रा पर एक साथ चले हैं, और उसके बारे में रोज एक साथ बात करते हैं. तो दिस इज अमेजिंग, एंड डेफिनेटली ये जर्नी हमें किसी अच्छी जगह लेकर जाएगी. और अगर हम एक्शन में रहेंगे और इसके ऊपर सोचते भी रहेंगे और इसके बारे में बात भी करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम अंदर से भी बदलेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय. Bye Thank everyone. you so much. Thank you. Thank you so Bye, much, everyone. Monica. Good night. Shubhratri, Thank you. Good Thank you. night. बहुत अच्छा.